Hey guys, Artham this side और आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड 75 क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द सेम टॉपिक एरे एंड स्ट्रिंग्स. सो लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. The question is actually lead code problem 151, that is reverse words in a string. As the name suggests, हमें करना क्या है, स्ट्रिंग दिया हुआ होगा, ऑब्वियसली वर्ड्स रिवर्स करने होंगे. इसका मतलब समझते फटाफट. सबसे पहले रीड कर लेते हैं. यू आर गिवन अ स्ट्रिंग और आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन द गिवन स्ट्रिंग. फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन अ स्ट्रिंग हाई, then space, then my, then space, world. Okay, right? And maybe spaces at the front and the back also. This is the string you are given with, and what you have to do, what you have to return, actually you have to return another string in the function which you would reverse the order of the word. For example, this is a word, right? Between two spaces, right? Between two spaces, this is the word. Let me change the color first. This would be the second word between two spaces again, and this would be the third word between two spaces again. So in your answer, what you will do, you would just reverse the order. You would return the string in which the order of the words in the original string would be reversed, right? So world पहले आ जाएगा, sorry, world, then space, then my, sorry, then high, I'm sorry, then my, then space, then high, right? So that's what you have to return, right? That's what you have to written in this question, right? And you're given a definition of the word. A word is defined as a sequence of non-space characters. Obviously word doesn't have any space in between. The words in the string s will be separated by at least one space. Obviously it's understandable, right? In the given string, it says in the given string the word would be separated, the words would be separated at least by a single space, right? At least by a single space. Now what is the note? The note that s may contain leading or trailing spaces, right? What does it mean? Leading spaces would be s may contain spaces at the beginning, right? Before any word there may be some spaces, right? There may be some spaces, like here I have introduced a space, so this is a leading space, and trailing space would be this at the end of the word. Okay, then right, so between two words, the return string should only have a single space between the separating words. Do not include any extra space. What this means is that while reversing the string, you would just return the words in reverse order, और बस जो space लगाओगे आप वो दो words के बीच में होगा. अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग में शुरू में स्पेस था फालतू, तो आपको वो यहाँ पर नहीं रिटर्न करना है. एंड में भी था तो भी आपको यहाँ नहीं रिटर्न करना है, और मे बी इन बिटवीन भी 3-4 स्पेस थे वर्ड्स के बीच में, तो भी आपको सिर्फ एक ही स्पेस रिटर्न करना है. सो दीज थ्री कंडीशंस यू हैव टू टेक केयर ऑफ, right? So let's quickly understand the example, then we'll build the intuition. So this is the example. Simple. आपको ना कोई leading space है ना कोई trailing space है, right? So what you will do, you will 1 2 3 4, so these four words are given here. What you would do, you would just reverse them. So blue पहले आ जाएगा, then is, then sky, then the, right? The sky is blue का हो जाएगा, blue is the sky, और कोई फालतू स्पेस शुरू में और एंड में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस दोनों थे, तो हमने वर्ड का ऑर्डर तो चेंज कर दिया. वर्ड पहले आ गया, हेलो बाद में आ गया, पर हमने लीडिंग स्पेस और ट्रेलिंग स्पेसेस नहीं दिए हैं, और वर्ड्स के बीच में आउटपुट स्ट्रिंग में सिर्फ एक ही स्पेस दिया है, राइट? सो ये हमारा आउटपुट होना चाहिए. वी हैव टू बिल्ड समथिंग लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो स्पेसेस थे, रिवर्स करते हुए हमने जब वर्ड्स रिवर्स करे, एग्जाम्पल गुड आ, तो इन दो स्पेस को हमने एक स्पेस बना दिया, राइट? एक स्पेस बना दिया. You need to reduce the multiple spaces between two words to a single space, right? That's what we were talking about. So let's build the intuition. Let's build the intuition first. Let's build the intuition. For example, let's take a word as an example. Just a second. Let's take this word, right? Let's take this word, the sky, right? Is blue. Guys, don't mind the writing. So let's modify this example, and let's say it also have multiple spaces in between, and this is a space and a leading space. So this is what a trailing space, and this is a leading space, and there are multiple spaces between the word also. So this is our example, right? This is our example string s. What you would do, intuition build करते हैं. So for example, one basic approach that would come into your mind would be, let's make a vector of strings, right? Let's make a vector of strings, and in that vector, let's say the vector is words, and in that vector what you will do, you will just keep storing the words, right? As soon as you encounter a word, you would store it in vector of strings. For example, let's say this is the intuition number 1, right? This is the intuition number 1. Let me change the color, right? Let's say you're here, you are at this position, you encounter a space, right? That is not a word, obviously that is not a word. तो मेन लॉजिक जो है आपका, वो आपको पता करना है कि आपको वर्ड कब मिल रहा है. तो इसके लिए बेसिक सी अप्रोच क्या होती है, आप एक टेम्पररी नाम का वेरिएबल बना लो, विच इज़ एम्प्टी. ऑब्वियसली
इनिशियली इट इज एम्प्टी, राइट. व्हाट यू वुड डू, आप आए स्पेस पे, आपने देखा वो स्पेस है, अगर वो स्पेस है तो आप उसे मत जोड़ो टेम्प वर्ड में, पर अगर वो कोई कैरेक्टर है तो तब तक उस कैरेक्टर को टेम्प वर्ड में जोड़ते रहो जब तक आपको स्पेस नहीं मिल जाता, तब तक आप उसे टेम्परेरी में जोड़ते रहो. फॉर एग्जाम्पल आई केम हियर एंड मैंने टी जोड़ दिया, राइट. फिर आई केम हियर मैंने एच जोड़ दिया टेम्प वर्ड में, आई केम हियर मैंने ई जोड़ दिया टेम्प वर्ड में, राइट. तो ये बन गया द. मैं अगले जब अल्टरेशन अगली उसमें आऊँगा अगले कैरेक्टर पे, देन आई सॉ दैट इट इज़ अ स्पेस. और एज सुन एज मैं कोई भी स्पेस इनकाउंटर करूँगा, जैसे ही मैं कोई भी स्पेस इनकाउंटर करूँगा मैं चेक करूँगा कि भाई टेम्प वर्ड में कुछ है क्या, मेरा कुछ जमा हुआ क्या, इकट्ठा हुआ क्या. अगर टेम्प वर्ड एम्प्टी था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने स्पेस इनकाउंटर करा और अब मैं टेम्प वर्ड को चेक करता तो टेम्प वर्ड मेरा इनिशियली एम्प्टी होता ऑब्वियसली. अब दूसरा केस क्या, जब मैंने यहाँ पर स्पेस को एनकाउंटर किया तो टेम्प वर्ड में मेरे एक वर्ड आ चुका है, which means that as soon as I encounter a space, it would mean that temp may have a word. It can have a empty string also, and it can have a word also. So you would check कि अगर उसमें कोई word है, अगर कोई इसमें word है तो as it is वो vector of words में डाल दो, right? Vector of words में डाल दो. So I would say that ये जो the है वो वहाँ चला गया vector of words में, right? यहाँ पर बना देता हूँ मैं अलग कलर से. Just a second, let me make the vector of words. So this would be my vector of words, right? दा चला गया, दिस वेक्टर में दा चला गया, राइट. अब मैं क्या करूँगा, लेट्स से आई आइट्रेट अगेन, लेट मी जस्ट आइट्रेट अगेन. अब मैं अगले कैरेक्टर पे, मैंने चेक करा यहाँ पर कैरेक्टर है तो यहाँ पर अब मुझे कुछ करना नहीं है, राइट. अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं कैरेक्टर इनकाउंटर करूँगा, राइट. पर एक चीज़ आपको कॉमन सेंस वाली सोचनी है, जैसे मैं अगर कैरेक्टर इनकाउंटर करूँगा और मैं इसमें जोड़ने लग जाऊँ तो उसमें इनिशियली भी टेम्प में कोई वैल्यू रहेगी, तो वो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि वो तो पहले वाले वर्ड की थी ना, मुझे अब दूसरे वर्ड की वैल्यू चाहिए. तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं एक वर्ड एनकाउंटर कर लूँगा, यानी स्पेस पे आऊँगा और मुझे पता चलेगा कि वर्ड है, तो उस वर्ड को स्टोर करते ही मैं क्या करूँगा, जैसे मैं वर्ड को स्टोर करूँगा उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसे एम्प्टी कर दूँगा, राइट. तो इसको मैं अगेन एम्प्टी कर देता हूँ. एम्प्टी कैसे करूँगा, टेम्प को कर दूँगा वहाँ पर व्हाट, टेम्प को कर दूँगा एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट. फिर मैं क्या करूँगा, जैसे मेरे को कैरेक्टर मिला उसमें जोड़ दिया, एस मिला, फिर उसके बाद मुझे मिला के, जोड़ दिया, फिर मुझे मिला वाई, राइट, जोड़ दिया, फिर मुझे मिला क्या, स्पेस. अब जैसे मुझे स्पेस मिला मैंने चेक किया, भाई टेम्प तेरे अंदर कोई वैल्यू है या नहीं. अब टेम्प ने कहा हाँ भाई मेरे अंदर वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू, स्काई, राइट. व्हाट इज द वैल्यू, स्काई. अभी स्काई वैल्यू मैंने क्या करी, इसमें जोड़ दी, राइट, वेक्टर ऑफ वर्ड्स में जोड़ दी. सो लेट्स क्विकली एड द वैल्यू इन द वेक्टर ऑफ वर्ड्स. जस्ट अ सेकेंड, राइट. स्काई इज बीइंग एडेड हियर. अब मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली आई वुड change the value after storing. What I would do, I would say that temp, can you return to the original state, so magically temp would return to its original state, right. Magically it has disappeared and temp has become empty. Now I have updated the temp. अब मैंने दोबारा उसे empty कर दिया ताकि वो अगला word store कर सके. फिर मैं अगले कैरेक्टर पे आया, मैंने चेक करा क्या स्पेस तो नहीं है, स्पेस नहीं था तो उसमें स्टोर कर लिया. So I have added I in it. देन वॉट आई डन, मैंने एस एनकाउंटर करा, उसमें एस जोड़ दिया, फिर मैंने स्पेस एनकाउंटर करा, फिर मैंने टेम्प से पूछा, जैसे मैंने स्पेस एनकाउंटर करा, आई एम आस्किंग टेम्प, राइट. आई एम आस्किंग टेम्प कि टेम्प भाई तेरे पास कुछ कैरेक्टर्स जमा है या तू खाली है. अगर तू खाली है मुझे कोई लेने देना नहीं तेरे से, बट अगर तेरे पास कुछ कैरेक्टर जमा हो गए, तू खाली नहीं है, ऑब्वियसली तेरे पास वर्ड होगा, उस वर्ड को उठा के तू वेक्टर ऑफ वर्ड्स में डाल देगा क्या, राइट. उस वर्ड को उठा के हम वेक्टर ऑफ वर्ड में डाल देंगे. सो इसको भी हम क्या डाल देंगे, इसको भी हम डाल देंगे वेक्टर ऑफ वर्ड्स में. लेट्स से इज यहाँ पर आ गया अगेन, राइट. अब क्या करूँगा, मैं आगे एडिट करूँगा, राइट, आगे एडिट करूँगा. लेट्स से अब जैसे मैंने स्टोर कर दिया, दिस वुड ऑटोमेटिकली बिकम एम्प्टी. अगेन आई वुड सेट इट टू एम्प्टी, ऑब्वियसली आई वुड सेट इट टू एम्प्टी. अब मैं क्या कहूँगा, अब अगला कैरेक्टर बी एनकाउंटर हो तो टेम्परेरी एम्प्टी स्ट्रिंग में ऐड कर दिया, बी आ गया यहाँ पर. फिर यहाँ एल एनकाउंटर हुआ, एल ऐड कर दिया, फिर यू आया, फिर ई आया, राइट, फिर ई आया, राइट, फिर स्पेस आया, राइट, फिर स्पेस आया. अब मैंने कहा कि भाई टेम्प तूने स्पेस एनकाउंटर करा है, अब तेरे पास जैसे ही मैं स्पेस एनकाउंटर करूँगा, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम आस्किंग टेम्प वेदर यू हैव सम वैल्यू और नॉट. इफ यू डोंट हैव एनी वैल्यू, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट यू, बट इफ यू हैव अ वैल्यू, just do one thing, store it into my vector of words, right. So this blue would be stored as a word as soon as I encounter the space. Now what I will do at the end I would reverse this. I have the words, right, I would reverse it, right. As soon as I reverse it, पूरा vector of words reverse हो जाएगा, तो ये बन जाएगा blue is sky da. And what I will do, I would just make an empty answer string and I would keep on adding the words of I with a space, right, for then this would become what answer, this would become empty string, right, empty string. I have added the, then words of I was after reversing, this would come at 0th index, that would come at 1 index, this would come at 2nd index, this would come at third index. So सबसे पहले क्या आएगा, I'm sorry, the नहीं आएगा, सबसे पहले
सबसे पहले आंसर में आएगा जो फर्स्ट में होगा रिवर्स करने के बाद ब्लू राइट, देन स्पेस राइट, देन व्हाट इज, देन स्पेस again guys don't mind the writing, then sky, then space, and then the and what then space again, then space, because आप वर्ड के आगे जरूर जोड़ रहे हैं स्पेस, जैसे ही वर्ड ऐड हुआ स्पेस जुड़ा, वर्ड ऐड हुआ स्पेस जुड़ा, वर्ड ऐड हुआ स्पेस जुड़ा, तो आखिरी वर्ड जब ऐड होगा उसके एंड में भी स्पेस आएगा. सो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कुड जस्ट रिटर्न द सबस्ट्रिंग, आप सबस्ट्रिंग रिटर्न कर दो पूरे आंसर का, सब str जीरोथ इंडेक्स से लेके आप लास्ट वाले इंडेक्स -1 तक रिटर्न कर दो, यानी यहीं तक रिटर्न कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्लू स्पेस इज स्पेस स्काई स्पेस द, विच इज रिक्वायर्ड राइट, विच इज रिक्वायर्ड n-1 तक राइट. अब एक स्पेशल चीज़ मेरे को आपको बतानी है, वो अंडरस्टैंड कीजिए राइट, वो अंडरस्टैंड कीजिए. जस्ट अ सेकंड, लेट मी इरेज इट क्विकली. एंड अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, लेट्स से यहाँ पर स्पेस नहीं था एंड में राइट, यहाँ पर स्पेस नहीं था एंड में, एंड इट वॉज ओनली till the character E of blue word right, till the character of E right. अब एंड में क्या होगा, अब आप कंडीशन समझिए, ज़रा थोड़ा कंडीशन समझिए. टेम्प में हमारा मैंने आराम से आइटरेट करा, मेरे को B मिला ऐड हुआ, L मिला, U मिला, E मिला राइट. अब इस पूरे वर्ड के बाद कोई भी स्पेस नहीं है, अब कोई स्पेस ही नहीं है तो मैं कहाँ टेम्प से अब पूछूंगा, मैं तो वर्ड तभी वेक्टर ऑफ वर्ड्स में वेक्टर में तभी इंसर्ट कर रहा हूँ जब मुझे कोई भी स्पेस मिल रहा है. अब यहाँ स्पेस नहीं मिला राइट, हो सकता है स्पेस ना मिले, यू डोंट ऑलवेज नो द इनपुट स्ट्रिंग राइट, आपको स्पेस मिल भी सकता नहीं भी मिल सकता. तो अब एक सिंपल सा पूरे लूप के बाहर एक कंडीशन लगा देंगे, अगर पूरे लूप चलने के बाद भी टेम्प खाली नहीं है, नॉट इज गोस टू खाली, विच मीन्स दैट कोई ना कोई वर्ड रह गया है जो एंड में स्पेस ना होने के कारण ऐड नहीं हो पाया वर्ड्स में राइट, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग वर्ड्स में, तो उसको मैं अलग से ऐड कर दूंगा राइट, उसको मैं आंसर डॉट और वर्ड्स डॉट पुशबैक, आई एम सॉरी वर्ड्स डॉट पुशबैक कर दूंगा राइट, पीबी वर्ड्स डॉट पुशबैक कर दूंगा टेम्प को राइट. सो ये ब्लू अलग से मेरा ऐड हो जाएगा बाद में आफ्टर द आइटरेशन राइट. सो दैट्स व्हाट आई हैव टू डू राइट. So this is the basic logic. Let's quickly go through the code and understand the time complexity obviously. Let me make this clear, bigger. So this was the initial function which was given to us. We had to return the string and we this was the input string. मैंने simple सा word vector word ले लिया, फिर एक temp word ले लिया, फिर initially I को 0 कर दिया obviously. The sky is blue पे. Let me take the string here to make you understand more. The sky is blue right, with no space right, with no space. Or this is also not a space. The string is this only right. मैंने initially temp empty ले लिया, I को 0 से शुरू करा है obviously और लास्ट तक n-1 तक चलाया, तो n क्या लिया मैंने, n-1 राइट, लास्ट कैरेक्टर का, और while लूप चलाया, सिर्फ कैरेक्टर स्टोर किया उसमें. कैरेक्टर कैसे, कैरेक्टर लेट्स से मैंने ले लिया s of i राइट. अब मैं चेक कर रहा हूँ कैरेक्टर कहीं हमारा स्पेस तो नहीं है, जैसे ही मैंने बोला हमारा कैरेक्टर स्पेस एनकाउंटर हुआ कहीं भी, आई वुड आस्क टेम्प. सो आई एम आस्किंग टेम्प, भाई टेम्प तेरे पास कहीं तू एम्प्टी तो नहीं है, अगर तू एम्प्टी नहीं है तो तेरे पास वर्ड्स है तो तू उसे उसमें डाल दे, अगर तू एम्प्टी है तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो मैंने कुछ कंडीशन उसके लिए नहीं लिखी. अगर टेम्प में वर्ड है तभी मैं पुश बैक कर रहा हूँ वर्ड्स में राइट. और मैंने जैसे ही पुश बैक करा, जैसे ही वर्ड्स को इंसर्ट करा, तो मैंने टेम्प को दोबारा क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया फॉर द नेक्स्ट वर्ड राइट, फॉर द नेक्स्ट वर्ड. देन व्हाट आई हैड डन, अगर वो कैरेक्टर नहीं है तो मैं टेम्प वर्ड में एज इट इज कैरेक्टर जोड़ता जाऊंगा ताकि मुझे वर्ड मिलता जाए. जैसे ही कैरेक्टर एनकाउंटर होगा तभी तो वर्ड मिला है पूरा, ना तो वर्ड के बीच में ही हूँ ना मैं, एस जोड़ा फिर के जोड़ा फिर वाई जोड़ा फिर कैरेक्टर आया, तब मैंने पूछा कि भैया तेरे पास वर्ड है या नहीं, अगर है तो उसे डाल दे, नहीं है तो कुछ मत कर, डाल के क्या कर, एम्प्टी हो जा बस. और सिंपल आई इंक्रीज करते रहेंगे बस. दिस वॉज द लूप, दिस वॉज द बेसिक लूप राइट. और एंड में चेक कर लिया कहीं आखिरी में स्पेस ना हो, आखिरी में स्पेस ना हो तो हमारे ये लास्ट वाला वर्ड इंसर्ट ना नहीं होगा. इसके लिए मैंने एक इफ लगा दिया. इस पूरे लूप के बाद भी अगर तेरे पास टेम्प वर्ड, अगर तेरे पास कोई वैल्यू है और तो नल नहीं है, एम्प्टी नहीं है, तो तू क्या कर, तू भाई एक काम कर, तो सिंपल सा वर्ड उसमें डाल दे, जो भी तेरे पास वैल्यू है वर्ड, आखिरी वर्ड दैट इज ब्लू, उसको वेक्टर वर्ड्स में डाल दे. और मैंने क्या करा, फिर रिवर्स कर दिया पूरे वेक्टर स्ट्रिंग को और एक एम्प्टी स्ट्रिंग आंसर ले लिया जिसमें मैं सारी वैल्यू जोड़ता रहा विद द स्पेस. अब विद द स्पेस वर्ड के बाद आ रहा है, वर्ड के बाद आ रहा है राइट. तो आखिरी वर्ड के बाद, लेट्स से आखिरी वर्ड द था हमारा रिवर्स होने के बाद, तो उसके बाद भी स्पेस आएगा. उसके लिए मैंने क्या करा, 0 से n-1 पोजीशन तक सब स्ट्रिंग ले लिया आंसर का और उसे रिटर्न कर दिया. सिंपल. So let's quickly understand the time complexity. This one looks cool. Let's understand the time complexity now. Let me make it bigger too. Right. So time complexity of this would be of n right, O of n. This looks shitty. Pink is fine, right? Time complexity of this would be O of n. क्यों? हम हर i को हर कैरेक्टर पे लेके जाने एक बार, उसके अंदर कुछ भी ऐसा ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं हम
जो O ऑफ 1 से ज़्यादा ले रहा है या कॉन्स्टेंट टाइम से ज़्यादा ले रहा है ऑब्वियसली। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारी O ऑफ n। यहाँ पर कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, यहाँ पर फिर से रिवर्स करते हुए O ऑफ n लगती है वेक्टर को ऑब्वियसली, ऐसे 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 रिवर्स करते हैं तो n/2 लगती है, वो केस में O ऑफ n हो जाती है। और यहाँ भी पूरा वेक्टर आइटरेट हो रहा है तो यहाँ भी O ऑफ n है, तो मोटा 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 सबको सम करेंगे तो कहीं ना कहीं O ऑफ 3n आ जाएगी, विच इज़ अगेन वॉट ऑब्वियसली विच इज़ अगेन O ऑफ n। Space complexities, you're taking a words vector which has number of words, and number of words is not definite, right? Number of words is not definite. Then again you're taking another string which is of same length as of n, right? Same length as of n, right? You're taking a vector, right? You're taking a vector. अब इसका साइज समझिए कितना होगा। एक स्ट्रिंग था जिसमें हमारे लेट्स से ये था ना, द स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, राइट? ये स्ट्रिंग था, तो इसका जब वेक्टर ऑफ वर्ड्स बनेगा तो वो 4 साइज का होगा ऑब्वियसली, 4 साइज का होगा। और जो हमारा क्या, जो हमारा स्ट्रिंग था वो लेट्स से n साइज का था, विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर, क्योंकि भाई ये तो ग्रेटर रहेगा ना, वर्ड्स तो कम है ना, टोटल कैरेक्टर ज़्यादा है। अब आप 1 2 3 4 4 तो यहीं पर हो गए, अब ये वर्ड्स ऑब्वियसली ज़्यादा है, राइट? तो मैं क्या कहूँगा, ओवरऑल मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ग्रेटर बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ आंसर स्ट्रिंग, बिकॉज ऑफ आंसर स्ट्रिंग। तो मैं कहूँगा इसकी वजह से कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, ऑफ n। तो ये कितनी हो गई टाइम कॉम्प्लेक्स, स्पेस कॉम्प्लेक्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑफ n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगेन ऑफ n, दिस इज स्पेस एंड दिस इज टाइम, राइट? Now another approach, this was all for this approach. Now another approach would be what, if you don't want to take this फालतू space or फालतू vector of word, you can basically do what, आप you don't have to keep on storing, आप store मत करो, store करके iterate मत करो, आप simple क्या कर दो, simple क्या कर दो, let me explain that again। अब सिंपल बेसिकली क्या करो, आप आपको कोई भी वर्ड मिलता है, लेट्स से आपको कोई भी वर्ड मिलता है, सबसे पहले आपने इस पर आ जाइए आप, लेट्स से आपको दा मिल गया, आपको टेम्प में दा मिल गया, लेट्स से टेम्प बिकेम दा। आपने चेक किया भाई तो एम्प्टी तो नहीं है, नहीं है, तो आंसर आपने वहीं पर ले लिया था इनिशियली एम्प्टी, तो आपने क्या करा, उसको जोड़ दिया, उसको जोड़ दिया बाद में, राइट? उसको जोड़ दिया बाद में और उसके बाद स्पेस लगा दिया। लेट मी एक्सप्लेन इट यूजिंग कोड, मैंने कोड भी लिखा है इसका सेकंड अप्रोच का, लेट मी एक्सप्लेन इट यूजिंग कोड, राइट? सो मैंने क्या करा, जैसे ही मुझे टेम्प मिला, मैंने कहा टेम्प, जैसे ही फेल मिला मैंने पूछा भाई टेम्प तेरे पास कुछ है, अगर तेरे पास वर्ड है तो तू क्या कर, आंसर जो एम्प्टी स्ट्रिंग है इनिशियली उसमें तू जोड़ दे, उसमें तू शुरू में जोड़ दे, विच मीन्स यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग में हमने द जोड़ दिया एंड उसके बाद स्पेस जोड़ा एंड उसके बाद आंसर एम्प्टी स्ट्रिंग अगेन, दिस इज नथिंग। सो द स्पेस एंड आंसर, आंसर हैज बिकम व्हाट नाउ, आंसर हैज बिकम द स्पेस, राइट? द एंड स्पेस, राइट? अब क्या होगा, अगला वर्ड जैसे मिला स्काई, राइट? द स्काई इज ब्लू ना, द स्काई इज ब्लू। अब अगला वर्ड मिलेगा स्काई, जैसे ही तुझे स्काई मिले तू क्या कर, आंसर में शुरू में जोड़ दे स्काई विद स्पेस, स्काई विद स्पेस, राइट? स्काई विद स्पेस, और आंसर क्या था, आंसर था द एंड स्पेस, तो आंसर वुड बिकम व्हाट, स्काई स्पेस द स्पेस। अगेन व्हेन यू एनकाउंटर द वर्ड इज, तो उसमें भी क्या कर, शुरू में जोड़ दे इज स्पेस स्काई स्पेस द स्पेस, राइट? एंड अगेन इफ व्हेन यू एनकाउंटर ब्लू वर्ड, ऑब्वियसली you wouldn't treat blue word here, तो इसके लिए मैंने अलग से if लगाया, जैसे पीछे सेम लॉजिक है जो मैंने बताया, उसको भी तू क्या कर, एंड में जोड़ दे, तो आंसर शुरू में जोड़ दे, आई मीन आंसर तो ब्लू स्पेस, राइट? टेम्प वर्ड एंड देन स्पेस एंड देन आंसर, तो ब्लू स्पेस एंड देन ओरिजिनल आंसर विच इज स्पेस स्काई स्पेस एंड द स्पेस, राइट? तो अब आंसर क्या बन जाएगा, ब्लू देन स्पेस देन इज देन स्पेस देन स्काई देन स्पेस देन द देन स्पेस। अब अगेन वही स्पेस वाला लॉजिक आ गया भाई, यहाँ पर स्पेस वाला लॉजिक आ गया ना, यहाँ पर भी दिक्कत हो रही है, एंड में स्पेस मिल रहा है, तो अगेन सब स्ट्रिंग ले लो ना इसका, जीरो इंडेक्स से यहाँ तक n-1 तक, और रिटर्न कर दो। सो अगर आपको वेक्टर वर्ड्स नहीं लेना है और यू हैव टू डायरेक्टली रिवर्स इट, आप ये वाला लॉजिक यूज़ कर सकते हैं, दिस इज द कोड फॉर दैट, एंड सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बस वेक्टर वर्ड ना ये नहीं यूज़ कर रहे। So you're not using any surplus time complexity, which is obviously not a factor of space complexity, but still we are not using this vector of string words, right? So this was all for today, and this was a question number 151 of reverse words in a string of the lead code 75 interview questions, right? We will be completing it. Let's say we would be completing it within a month. We'll try completing it within a month. I will increase the frequency of the videos. Let's see if it is possible or not. I don't know, but we'll surely do it, right? एंड कोड करते ही आज के लिए इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।